जय हिंद दोस्तों। कल हमने करंट के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू रिज्यूम विद द करंट अफेयर्स टॉपिक्स अंडर इंडियन इकोनॉमी. As you know, the handout that you have got, it is divided on the basis of sections, which are basically chapters from the syllabus of Indian economy. So chapters like money and banking, thereafter monetary policy, if there are any changes, fiscal policy, financial markets. Yesterday we had started with respect to changes that have been done in financial markets and what all changes are we expecting that would be taken effect in this particular year. So there are many developments on stock markets or financial markets that would be effective post budget, which are not included in these handouts. When we would be doing current affairs from January to March, that would be in the month of April, our next class. At that time, I'll be covering more and more updates from stock markets. But today, certain developments that have taken place in the previous year, that is in 2024, I will be covering that. So the very first article that we are focusing upon under financial markets is SEBI regulations. Now, please understand certain things first, that how do we look at regulations and how they are impacting us. SEBI is an institution that was regularized. When I say regularized, it basically means that Securities and Exchange Board of India was given the powers and the authority to act as a regulatory body in the year 1992, which was post the Harshad Mehta scam. After the Harshad Mehta scam, or rather I should say that Harshad Mehta scam and the like of that scam happened only because at that point of time there was no regulator in the Indian stock market. RBI used to be given the responsibility to look after the problems that were faced in the stock market, but there was no regulator. पता ही नहीं था कि कौन रेगुलेट कर रहा है, क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह. हवा में चीजें होती थी स्टॉक मार्केट में. But when the stock market crashed after that scam, it led to loss of the public money, because eventually people like you and me, the public, invests in the stock market. So if we are investing in the stock market and our investment in the stock market has not been effective, so how would we, or let's say if there has been some kind of fraud, there has been some kind of misinformation or miscommunication which has led to the tanking of the stock market. That leads to wiping out of investor wealth, which is not good. In fact, it is the breach of trust of the investor. So looking to make sure that the trust of the investor has to be restored, there has to be a regulator, and the regulator was SEBI. SEBI was made into a regulatory body, and the sole objective on which SEBI was regularized, the sole objective was one, and that was investor protection. ये SEBI का एकमात्र जो है ऑब्जेक्टिव है. ये इनका, आप ये मान के चले, इनका स्लोगन है, इनका ऑब्जेक्टिव है, इसका एस्टैब्लिशमेंट इसी पे बेस्ड है, इसका अस्तित्व यही है. सिंपल. तो SEBI को अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करना है उसका रोल, तो द रोल इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. तो जितनी चीजें SEBI करता है, चाहे किसी के ऊपर बैन लगाना, कुछ रेगुलेट करना, कोई चीज ऊपर बढ़ाना, कुछ कम करना, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए करी जाती है, that we have to make sure that investor protection is done. So in order to protect the investors from any kind of breach of trust or from any kind of, let's say, development that takes place that basically falsifies information for the investors, that action has to be stopped by SEBI. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक मार्केट गिरेगा नहीं. स्टॉक मार्केट गिर भी सकता है, स्टॉक मार्केट में नुकसान भी हो सकता है, बट जो नुकसान हो रहा है वो प्रॉपर कानूनन तरीके से, लीगल तरीके से हो रहा. आपसे कोई इंफॉर्मेशन छुपी नहीं होनी चाहिए. अगर आपसे और हमसे कोई इंफॉर्मेशन छुपी हुई है और उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट गिर रहा है या चढ़ रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज चीटिंग. उसको कहा जाता है फ्रॉड, या हमारी भाषा में उसको कहा जाता है 420, दैट इज चीटिंग. उस चीज से बचने के लिए every single transaction that happens on stock market, it should be on transparent basis, and it should be based on the information which is transparently available to every single investor, which means it should be common knowledge. वो common knowledge होना चाहिए.
तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सारे के सारे रूल्स सेबी द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें एक बहुत मेजर रूल है टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि आप इंफॉर्मेशन को सही वक्त पे डिस्क्लोज करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज ये है कि जो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, उस इंफॉर्मेशन का आप whoever has access to that information should not take undue advantage of that information। उस इंफॉर्मेशन, उस सूची या उस सुर्खी से बनी हुई कोई भी गलत फायदा जो है कोई ना उठा पाए। These are the two objectives with respect to investor protection। तो क्या चीज है, what is it that is so important about these things that we are about to understand? ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये आप समझने की कोशिश करिए। So when we talk about information in particular, this I think I told you yesterday also that stock market functioning is based on information and every single information is highly sensitive। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है। तो स्टॉक मार्केट का जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे, और इंफॉर्मेशन सेंसिटिव होती है। तो उस सेंसिटिविटी के बेसिस पे स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करता है। इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्चुअल हैपनिंग ऑफ दैट एक्टिविटी डज नॉट मैटर। जो आपने इंफॉर्मेशन फ्लोट करी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चाहे वो इवेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका स्टॉक मार्केट हिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। इसका मतलब इंफॉर्मेशन वाइटल है, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, इंफॉर्मेशन वाइटल है, इंफॉर्मेशन इज वेरी, प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। इंफॉर्मेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू एसोसिएट? द एसोसिएशन इज that if the information is leading to the fluctuation in stock market, I am supposed to know, or it's my right to know about that information that will fluctuate the stock market, because my trade means purchase sale is based on that information। अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं डिसीजन कैसे लूं? How will I take that decision? Absolutely true। The person who has access to that information, जिसके पास उस information की access है, means a person who has access to that information before the public has access to that information is called an insider। उसे इंसाइडर कहा जाता है। इंसाइडर वो व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी सूची है जिसके बेसिस पे आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट हिल सकता है, उसको इंसाइडर बोला जाता है। ऐसे इंसान के पास जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इसके पर्सनल नॉलेज के लिए है, और वो इंफॉर्मेशन इसके पास इसलिए है क्योंकि ये एक पोजीशन ऑफ पावर या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे है, उसी के पास हो सकती है। मेरे आपके पास रिलायंस के डेवलपमेंट्स की तो इंफॉर्मेशन होगी नहीं, सीधी बात है। उसी के पास होगी जो डिसीजन मेकिंग पावर में है, या तो फैमिली होगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सीनियर लोग होंगे, ओनली दे विल हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, the insider has access. Insider should not be using that information for his personal use। I repeat, insider should not be using that information for his personal use to amass gains। That activity is called as insider trading। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपके पास एक्सेस है कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिस इंफॉर्मेशन के पब्लिक होते ही मार्केट्स अफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक होने से पहले किसी के साथ ट्रेड करते हो, जिसका आप गलत फायदा उठा सकते हो या आप वेल्थ अमास कर सकते हो, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स, इनसाइडर ट्रेडिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी। एक गैर कानूनी एक्टिविटी है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में है, लेकिन हम यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहे। ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि जो दूसरी टर्म है फ्रंट रनिंग, जिसके बारे में एक्चुअल डिस्कशन करना है, दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ अ टर्म, बट इट इज नॉट इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे आप ट्रेड करते हो, पब्लिक में बेचते हो, और इसके एवज में आप कुछ पैसा लेते हो। दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग।
On the other hand, front running is done by brokers, investment bankers और people who run mutual fund agencies. किसी के भी द्वारा किया जा सकता है. फ्रंट रनिंग में और इनसाइडर ट्रेडिंग में फर्क ये है, इनसाइडर ट्रेडिंग में आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो पब्लिक में नहीं है उसको आप ट्रेड करते हो और पैसा कमाते हो. फ्रंट रनिंग में आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि आने वाले टाइम में एक बहुत जबरदस्त बड़े अमाउंट का ट्रेड होने वाला है, व्यापार होने वाला है. ट्रेड का मतलब है एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर आने वाले टाइम में अपने पैसे एक पर्टिकुलर मार्केट में, एक पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है, या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड बेचने वाला है. दोनों ही सूरतों में स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा. इट विल इंपैक्ट द मार्केट. अगर दोनों ही सूरतों में स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप पहले से कोई एक्शन लेते हो, या तो आप शेयर्स खरीद लोगे, अगर आपको यह लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट बढ़ेगा तो आप स्टॉक्स खरीद लोगे, या आपको लगता है आने वाले टाइम में मार्केट गिरेगा तो आप स्टॉक्स बेच दोगे. दोनों ही सूरतों में आप अपने फायदे के लिए जो एक्शन लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन की आने वाले टाइम में ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है, उस एक्टिविटी को फ्रंट रनिंग कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो इलीगल. ऐसी एक्टिविटीज इलीगल कहलाई जाती है. तो सेबी द्वारा यह चीज ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज जो कि इन्वेस्टर की इंफॉर्मेशन के परे हो, इन्वेस्टर को वो इंफॉर्मेशन उपलब्ध ना हो, या इन्वेस्टर के ना इन्फॉर्म ना होने की वजह से अगर आप उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू एन इलीगल एक्टिविटी इन दीज टू टर्म्स. अब आप पूछोगे इलीगल एक्टिविटी कैसे है या ये प्रॉफिट कैसे कमाता है. It is something which is very, very simple. Let's say the market is let's say a particular company's share price is trading at 300 rupees. 300 रुपए का एक शेयर प्राइस चल रहा है. अगर एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में होता है, मान लीजिए इकट्ठे 50,000 शेयर्स उस कंपनी के खरीदे जाते हैं एक इन्वेस्टर द्वारा. म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो साइजेबल इन्वेस्टमेंट लगाते हैं. जैसे कि मतलब मान लीजिए HDFC फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, निपॉन इंडिया है. ऑल दीज फंड्स दे कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल लाइक यू एंड मी. जब बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो म्यूचुअल फंड में हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम एक फंड में पैसा डालते हैं और वो फंड जो है वो वहां से पैसा निकाल के उन कंपनीज में डालता है. तो कंपनीज में जब पैसा जाता है तो साइजेबल पैसा होता है. इट इज अ साइजेबल अमाउंट ऑफ फंड. तो जितना बड़ा म्यूचुअल फंड उसके पास उतने ही ज्यादा पैसे, जितने ज्यादा पैसे उतना ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट. जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस पे लगेगा या एक पर्टिकुलर कंपनी में लगेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और जब शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, प्राइस विल इंक्रीज. तो अगर आपने इसी प्राइस पे खरीद लिया तो आगे जाके शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. बट दिस इज एन इलीगल एक्टिविटी. ये इलीगल एक्टिविटी है. अगर आपको ये चीज पता चल जाती है कि कोई ना कोई कंपनी ऐसी या कोई एक म्यूचुअल फंड ऐसा है या कोई इन्वेस्टर ऐसा है या ब्रोकर ऐसा है जो आने वाले टाइम में मैसिव इन्वेस्टमेंट करने वाला है एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में, और आपने उसे पहले ही खरीद के रख लिया, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज फ्रंट रनिंग एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी इज एन इलीगल एक्टिविटी. तो ऐसी गैर कानूनी एक्टिविटी की सख्त सजा है अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स. सेबी रूल्स के अनुसार इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट सजा मिलती है. आपके ऊपर बैन लग जाएगा, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज आर बैन्ड बाय सेबी एंड दीज आर स्टेटेड एज इलीगल बाय सेबी. इसके सिवा और भी कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे गिविंग फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन और मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस कि जी आप मेरे कहने पे ये शेयर खरीद लो और आपका स्टॉक प्राइस, आपका शेयर बढ़ जाएगा, आप इतना प्रॉफिट कमा लोगे. जैसे ये आजकल के इन्फ्लुएंसर्स आपने देखा होगा जो थंबनेल बनाते हैं 10,000 बना 10 करोड़, ठीक है, और आप देखोगे ऐसे थंबनेल पे, ऐसे वीडियो पे मिलियंस ऑफ व्यूज हैं. तो दे आर बेसिकली गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और वो गलत एक चीज जो है लोगों पे इंपोज कर रहे हैं. दे आर इंपोजिंग इनकरेक्ट थिंग्स ऑन पीपल दैट यू बाय दिस पर्टिकुलर शेयर ऑन माय सेइंग एंड दिस शेयर विल इंक्रीज. ये काम आप नहीं कर सकते. दिस थिंग यू कैन नॉट डू. आप ये तो बता सकते हो कि मेरा ये मानना है कि ये कंपनी इस बेसिस पे इसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये शेयर तुम खरीद लो और ये स्टॉक प्राइस आगे ऊपर जाएगा. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन क्लेम. तमाम इन्फ्लुएंसर्स, जिनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है, तमाम इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिसपे सेबी का बैन लगा हुआ है, शैडो बैन लगा हुआ है. सेबी ने बहुत सारे लोगों पे पेनल्टीज लगाई हैं, भारी करोड़ों की मात्रा में पेनल्टीज लगाई हैं, सिर्फ इस वजह से बिकॉज ईदर दे मिसगाइड द इन्वेस्टर्स और दे मिसलीड द इन्वेस्टर्स और दे चीट देयर इन्वेस्टर्स. कोई भी केस हो सकता है इनमें से.
वो भी एक इलीगल एक्टिविटी है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें एक ऑब्जेक्टिव की तरफ भाग रही हैं, एंड दैट इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, कि इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, इन्वेस्टर शुड नॉट बी चीटेड। दिस इज कॉल्ड फ्रंट रनिंग एक्टिविटी विच वाज इन न्यूज। तो पढ़िए इसको। Quant Mutual Fund under regulatory scrutiny for alleged front running, while SEBI banned 8 individuals and ordered a return of 1.3 crores for similar activity. तो फ्रंट रनिंग का मतलब होता है occurs when someone uses sensitive information about a fund's trades to execute their own trade, first profiting from the subsequent price movement. आने वाले टाइम में प्राइस का मूवमेंट हो रहा है या होने वाला है, तो मैंने पहले ही शेयर्स खरीद लिए। मुझे पता है कि एक कोई एक्स म्यूचुअल फंड है, वो उतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो मैं पहले ही उसे खरीद लूं। अच्छा, सेबी के पास भी तरीके हैं पता करवाने के। अब आप पूछोगे कैसे पता चलता है सेबी को? सेबी के पास ऐसा एल्गोरिथम है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो ये पता करवाता है कि आप अगर, अब देखिए कितने ट्रायंगुलेट करने की बात है। क्या आप ब्रोकर हो? हाँ जी, आप ब्रोकर हो। आपके पास एक्सेस टू वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। उसके बेसिस पे वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखते हैं। वैसे नॉर्मली आप 10-20 10-20 10-20 50-100 शेयर खरीदते हो। उस दिन आपने इकट्ठे 5000 शेयर खरीद लिए उस कंपनी के जिसके बारे में मंडे को इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो यूं पकड़े जाते हो। तो एल्गोरिथम ट्रैक करता है, टेक्नोलॉजी ट्रैक करता है, पैटर्न ट्रैक करता है, कई सारी चीजें ट्रैक करता है, जिसके बेसिस पे सभी पकड़ा भी जाता है। ये मत समझिए इनसाइडर ट्रेडर पकड़ा नहीं जाता। प्लीज डोंट स्पीक इन बिटवीन, please don't speak in between. I'll come to you. I've seen your hand. It's not that I've not seen your hand. Please don't speak in between. So when we talk about any kind of insider who's making undue profits because of this, that specific logic of catching hold of an insider is also done by SEBI. ऐसा नहीं है वो पकड़ा नहीं जाएगा, वो बिल्कुल पकड़ा जाएगा। So you have to basically see as to what your pattern is. और अगर आप पैटर्न के हिसाब से चलोगे, तो पैटर्न फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। लेकिन अगर श्योर शॉट इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो, तो आप तो ऑल इन जाओगे। और ऑल इन का मतलब होता है कि मेरे पास जितना पैसा मैं इस पर लगा दूंगा, कल तक ये बढ़ जाएगा। तो वो चीज डेफिनेटली ट्रैक करी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एन इनसाइडर इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो इसको फ्रंट रनिंग कहा जाता है। तो एक इलीगल प्रैक्टिस है। चौथा बुलेट देखिए, इट इज एन इलीगल प्रैक्टिस एंड वन ऑफ द मोस्ट सीरियस स्टॉक मार्केट वायलेशंस। It mostly occurs with large asset managers and intermediaries. Intermediaries का मतलब है brokers involved in bulk trades, as their transactions significantly impact stock prices. So detection of front running, SEBI uses algo, data analytics, supervision technology to track front running. और इसका जो impact है वो majorly mutual funds के through देखा जाता है। It is seen via mutual funds. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि ये चीज किस तरीके से हो रही है। ये इसमें हो रही है। म्यूचुअल फंड्स में एक्चुअली ट्रैक करना आसान है। It is much easier to have access. कैसे तरीका होता है आपको थोड़ा सा अगर मैं बताने की कोशिश करूं, जो सबसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड की मार्केट कैप देखें, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स देखें, नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, और उन म्यूचुअल फंड्स का AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें। कितने एसेट्स उसके मैनेजमेंट में उसके वो मैनेज करता है, कितनी कंपनीज के शेयर प्राइसेस उसके पास अवेलेबल है। एक म्यूचुअल फंड में मान लीजिए 25 कंपनीज है, जो बेयर कम से कम कंपनीज होती है 25 कंपनीज, मतलब एक म्यूचुअल फंड 25 कंपनीज में पैसा लगाता है। अगर वो 25 कंपनीज में पैसा लगाता है, तो उस 25 कंपनीज, एक म्यूचुअल फंड में 25 कंपनीज में पैसा लगाया है, मान लीजिए उसका मार्केट कैप इन टोटालिटी 25 रुपीज आ रहा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर 25 रुपीज। दूसरी तरफ एक और म्यूचुअल फंड ने सेम 25 कंपनीज में लगाया है, लेकिन उसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 250 रुपए, 250 रुपीज, 10 गुना है। मतलब उसने उन्हीं 25 कंपनीज के 10-10 गुना शेयर्स खरीदे, 10 टाइम शेयर्स। एक ने 25 शेयर्स खरीदे, दूसरे ने 250 के शेयर्स खरीदे। दिस इज द डिफरेंस। सो अ बिगर म्यूचुअल फंड इज मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन दोस 25 कंपनीज। तो अब आपको यह पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड में इस साल के इस दौरान या इस महीने में इतना पैसा आता है। जब उतना पैसा एक महीने में आएगा, तो उस महीने के आने वाले टाइम में 1 या 2 महीने बाद वो पैसा डिप्लॉय करेगा। ऑब्वियसली उसने आगे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा उठाया। जब वो पैसा डिप्लॉय करेगा आगे उन शेयर्स में, तो आप ये मान के चले कि वो शेयर प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। क्योंकि वो शेयर प्राइसेस बढ़ने की संभावना है, इस वजह से आप पहले से वो शेयर्स खरीद के बैठ जाते। तो ऐसी इंफॉर्मेशन या इस एक्टिविटी को फ्रंट रनिंग कहा जाता है। इसमें ऑब्वियसली आपके पास कहीं ना कहीं से इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती जरूर होगी, यू वुड बी गेटिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन, बट इट कैन ऑल्सो बी ट्रैक्ड if you use your brain. It can also be tracked on the basis of estimating that this might increase in future, which is an illegal activity. ये एक illegal activity है।
ये गलत फायदा उठाने वाली एक्टिविटी है अगर आपके पास ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है और आप उसको इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें नीचे एक डिफरेंस लिख लीजिए प्लीज, डिफरेंस बिटवीन इनसाइडर ट्रेडिंग एंड फ्रंट रनिंग। Insider trading is based on confidential company information. It is based on confidential company information. Company information which would affect confidential company information which would affect the company stock prices. The company stock prices on information getting public, which would affect stock prices on information getting public. Whereas front running is based on knowledge of impending मार्केट ट्रांजैक्शंस। इम्पेंडिंग मतलब होने वाला मार्केट ट्रांजैक्शंस, की कोई मार्केट ट्रांजैक्शन होने वाला है और उस मार्केट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे आप पहले से एक एक्शन ले लो। वो मार्केट ट्रांजैक्शन है और ये इंफॉर्मेशन बिकमिंग पब्लिक है। एक्चुअली दोनों ही चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक एक्टिविटी होगी, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट होगा जिसकी वजह से शेयर प्राइस बढ़ेगा, और दूसरा ये एक इंफॉर्मेशन पब्लिक में आएगी और शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो पहली एक्टिविटी को इंफॉर्मेशन बिकमिंग पब्लिक को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और दूसरी एक्टिविटी को फ्रंट रनिंग कहते हैं। बताइए। Was that information not available to public? If information was public, then it is not illegal. Then तो it is fine. अगर इंफॉर्मेशन पब्लिक में थी और उसके बेसिस पे आपने एक्शन लिया है, then तो it is not sensitive information. No, it is public information. इनसाइडर इंफॉर्मेशन किस चीज की है? अबाउट इन्वेस्टमेंट है, वो चीज इसमें नहीं है। इज इट क्लियर एवरीवन? Followed by that, the second thing is appointment of higher positions or people at higher positions in financial institutions or banks. Financial institutions और बैंक्स के केस में जो अपॉइंटमेंट्स है हायर पोजीशंस की, तो दो ही होती है, चेयरपर्सन, सीईओ, एमडी, किसी भी नाम से बोल लीजिए, और उसके नीचे वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। इनफैक्ट किसी भी इंस्टीट्यूशन के डिसीजन मेकर्स यही होते हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स की। So when we talk about FIs or banks, or for that matter any other financial institution, it will also involve insurance companies or PF companies, or all these are financial institutions. इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं जिसके बेसिस पे पब्लिक मनी इंपैक्टेड होता है। क्यों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करी जा रही है? पब्लिक मनी यानी कि आपका और हमारा पैसा। बैंकों में आपका हमारा पैसा है, ठीक है। इंश्योरेंस में आपका हमारा प्रीमियम डिपॉजिट होता है जिसके बेसिस पे हमें इंश्योरेंस की सेवाएं मिलती हैं। तो इट इज प्लेइंग ऑन पब्लिक मनी। पब्लिक, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इट इज प्लेइंग ऑन पब्लिक मनी। यही अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मेरे घर की कंपनी, मैं 100 डिसीजंस लूं,
कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक मनी, वो मेरा अपना पैसा है. I am burning my own money. But as soon as I am playing on public money, it is very, very important that these people in power should be competent enough to make decisions. Do you agree with this? मेरे घर की कंपनी है, मैं किसी एक इनकॉम्पिटेंट इंसान को बिठा दूं. बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जहां बिजनेस ओनर्स अपने बच्चों को बिठाते हैं. इंडिया में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, अपने बच्चों को बिठा देते हैं गद्दी पे. अब चाहे उसे बिजनेस चलाना आता हो या ना आता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. You appoint that person, whether that person ruins the business tomorrow, whether that person does not function tomorrow, whether that business is turned around in losses. You look at the example of Anil Ambani, all right? He turned around the entire business. A profitable unit को loss making कैसे बनाना है, ये आप उससे सीख सकते हैं. He is a case study in himself. So he turned the entire profitable business into losses business. He had the telecommunication business initially, और telecom business चलता चलाया business losses में ले गए. तो ही इज इनकॉम्पिटेंट क्लियरली टू डू दैट. अब वो तो चलो एक कंपनी थी, घर की कंपनी थी, उस पर उन्होंने खेला और उसको लॉसेस में कर दिया. हालांकि वो भी एक लिस्टेड कंपनी थी, उसमें भी शेयर होल्डर्स का पैसा था, लेकिन शेयर होल्डर्स के पैसों पे जो आपने डिसीजंस लिए उसके बेसिस पे शेयर होल्डर्स भी उतने ही साझेदार हैं जितने कि आप खुद हो. अगर आप शेयर होल्डर्स को लगता है कि भाई सामने वाला इनकॉम्पिटेंट है तो शेयर्स बेच दो, सिंपल सी बात है. वो शेयर मार्केट को तभी रिस्की कहा जाता है. लेकिन अगर बैंक में पैसा है तो वो आपने बैंक इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करके पैसा अपना बैंक में डाला है, या आपने बैंक की और सेवाओं की वो ली है, फैसिलिटी ली है जो बैंक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. सर्विसेज कैन बी एनीथिंग. बैंक्स आज की डेट में सब कुछ बेचते हैं, म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बेचते हैं, ठीक है. उसके बाद और तमाम सर्विसेज होती है बैंक्स की. क्रेडिट कार्ड्स भी देते हैं, क्रेडिट स्कोर भी देते हैं, लोन्स भी सैंक्शन करवाते हैं, ये सब कुछ बैंक्स करते हैं. सो बैंक्स आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, और बैंक्स की जो सारी फैसिलिटीज हमारे पास उपलब्ध होती है उसके बेसिस पे हम बैंक पे ट्रस्ट करके कोई ना कोई चीज खरीदते हैं. सो आई एम एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट हाउ द बैंक इज टेकिंग इट्स ओन डिसीजन. इसका जो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है प्री एलपीजी रिफॉर्म्स. एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं 1991 में. उसके पहले 2 फेजेस में भारत सरकार नेशनलाइजेशन करती है. आपने शायद पढ़ा होगा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दैट यू ब्रिंग द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर योर कंट्रोल, or let's say any institution under your control, that is termed as nationalization. So nationalization took place in 2 phases. The first was in 1969 and the second was in 1980. Most of the banks were nationalized in India. Now when the banks got nationalized, there was a monopoly of the government. कि अब तो सिर्फ सरकारी बैंक ही है, प्राइवेट बैंक ही नहीं है. मोनोपोली हो गई भारत सरकार की. मोनोपोली हो गई तो दे बिकेम लेजी, लैकडेसिकल. मोनोपोली है, घूम फिर के लोग हमारे पास ही आएंगे. अब लोन दे या ना दे, दे तो ठीक है, जिसको मन आया उसको देंगे, जो मर्जी अमाउंट देंगे, रिकवरी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है. तो बैंक्स स्टार्टेड टू गो इन लॉसेस. हाउ? दैट बैंक्स वर रीलिंग अंडर हाई एनपीएस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू आउट 80s. लोगों को परवाह नहीं थी लोन रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारी बैंक में काम करने वालों को तो नौकरी की चिंता है नहीं. उनकी नौकरी एक बार लग गई, अब वो रिटायरमेंट पे ही खत्म होगी. सो यू आर देयर. तभी तो सरकारी नौकरी लोग करते हैं कि कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता. ये प्राइवेट बैंक में अगर एक नुकसान हो जाए एक आदमी के हाथ तो उसे फायर कर दिया जाएगा. लेकिन वो सरकारी बैंक है. एनपीए गॉटन हाई, एनपीए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है. 1991 तक ऐसी सिचुएशन आती है कि इंडियन बैंक्स के एनपीएस एट एन ऑल टाइम हाई. इन द लास्ट 20 years इंडियन बैंक्स एनपीएस आर एट एन ऑल टाइम हाई. इन्फ्लेशन रेट हाई. Banks don't have access to foreign exchange reserves, exports are not there, and imports prices have risen. India is on the verge of a bankrupt situation or bankruptcy situation. So India does LPG reforms and starts with the first thing, and that is banking sector reforms. कि banking sector reforms किए जाएं. एक तो economic reforms हुए, इसको LPG कहा जाता है, और दूसरे हुए banking reforms. Banking reforms were done on the recommendations of Narsimmam Committee. नरसिम्हम कमेटी ये कहती है कि आप कैसे ना कैसे करके बैंकों के एनपीए कम करें. और दूसरी चीज जो उन्होंने तब 1991 में सजेस्ट करी थी वो ये थी कि बैंक के अपॉइंटमेंट तो कम से कम तमीज से कर दो. फाइनेंस मिनिस्टर के चाचा भतीजा भांजा को तुमने चेयरपर्सन बना दिया एसबीआई का, क्या चलाएगा? इसको एक्सपीरियंस है बैंकिंग का. रैंडम लोग जो जिनको चाटुकार कहते हैं, बूट लिकर्स,
उनको उठा के आपने बैंक का चेयरपर्सन बना दिया। हाउ आर दे कॉम्पिटेंट टू रन सच अ बिग पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड आर दे इवन कॉम्पिटेंट टू रन दैट बैंक? बैंकिंग का क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीज है? ऐसे कैसे बना दिया आपने? और सेम कहानी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ऐसे लोगों को बनाते हैं कि भाई फोन आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री से, नॉर्थ ब्लॉक से, साउथ ब्लॉक से, कि ये आ रहा है इसको चेयरपर्सन बना दो, ये आ रहा है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दो, ये इसको ये बना दो, इसको वो बना दो। ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुआ करते थे बैंक्स में। तो इफ सच काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग डन, व्हिच इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर के या किसी एक बहुत सीनियर सेक्रेटरी के कहने पे अगर आपको कोई पोस्ट मिली है, तो फिर उसके कहने पे आपको वो उल्टे सीधे लोन्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी नौकरी, आपकी नौकरी उसकी वजह से लगी है। फिर किंगफिशर टाइप लोग, नीरव मोदी टाइप लोग आपके सामने आएंगे तो आप उनको लोन्स भी देंगे। ये तो दो एग्जांपल्स हैं जो कि टॉप हाई रेटेड ग्लैमरस एग्जांपल्स हैं, आप पब्लिक नॉलेज है। ऐसे कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर डिफॉल्टर्स हैं जो पिछले 20 साल में भारत छोड़ के भागे हैं अलग अलग देशों में। मेजॉरिटी ऑफ देम आर पुटिंग अप इन द यूके, वो ग्रेट ब्रिटेन में ही रह रहे हैं। मैक्सिमम डिफॉल्टर्स आर स्टेइंग इन द ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि वहां से एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बहुत वीक है हमारी। So when we talk about this kind of logic, he had suggested that you should make a specific board which decides on how these people are supposed to be appointed. आपने constitutional bodies पढ़ी हुई हैं, you have studied constitutional bodies like UPSC, Election Commission, right? National Commission on Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and Supreme Court judges. कैसे अपॉइंटमेंट होता है इन लोगों का? इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते हैं? एक कमिटी होती है और उस कमिटी में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते हैं। सिमिलरली यूपीएससी के चेयरपर्सन भी इसी तरीके से कमिटी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। मेजॉरिटी जो पोस्ट होती है वो एक कमिटी द्वारा अपॉइंट करी जाती है, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट inputs from every kind of voice, and same goes with Supreme Court judges or the people who are appointed as the High Court judges. और उसी के बेसिस पे आप ये चूज करते हो कि कौन कॉम्पिटेंट है और किसको उस पोस्ट पे अपॉइंट करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोफेंसी के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इट शुड हैपन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कैसे होगा? हाउ वुड इट हैपन? तो उसके लिए एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट बैंक बोर्ड्स ब्यूरो बना 1991, और हमने कब बनाया? 2014 में। 2014 में we made a board by the name of Bank Boards Bureau, which was a neutral body which had all ex-bankers, economists and qualified people to suggest names of those people or those candidates who can be looked at in terms of being able to serve that particular post or position of the chairperson of a particular bank or the board of directors of a particular bank, कि क्या आप उस पोजीशन पे सर्व कर पाएंगे? अगर आप कर पाएंगे तो आपको इस पे अपॉइंट किया जा रहा है। तो ये काम अब पहले होता था कि आप किसी के थ्रू भी अपॉइंटमेंट करा लेते, लेकिन अब ये चीज जो होगी वो बीबीबी, बैंक बोर्ड्स ब्यूरो द्वारा होगी। बैंक बोर्ड्स ब्यूरो बनाया गया था 2014 में। उस ब्यूरो को रीनेम किया गया है एज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो आप इस नाम को ध्यान रखेंगे, FSIB is the new version or the renamed version of Bank Boards Bureau, which was made for the first time in 2014, that was suggested in the year 1991. इतना लंबा प्रोसेस है, समझ में आया? Are you able to understand? पर्पस समझ में आया कि क्या जरूरत है FSIB की या बैंक बोर्ड्स ब्यूरो की? देखिए, FSIB suggest आशुतोष कुमार for the position of SBI MD and आशीष पांडे for Indian Bank। मतलब ये तो खैर हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहेगा, लेकिन आपको रोल समझ में आना चाहिए। तो आप देखिए that FSIB is a government body operating under Department of Financial Services, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आता है। इसको PT के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए, ये आप याद रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो, FSIB is led by chairperson chosen by central government. Board of FSIB will consist of IRDA, Deputy Governor of RBI, Secretary of Department of Financial Services, 3 part-time banking experts and part-time insurance industry professionals। इतने सारे लोग हैं। इतने सारे लोगों की मेजॉरिटी के बेसिस पे कोई डिसीजन लिया जाएगा या कोई नाम पे जो है चर्चा होगा। तो जो चर्चा होगी नामों पे होगी, उस पे जो मेजॉरिटी मानेगी वही प्रस्ताव आगे जाएगा, और उसी के बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्टर को चूज करना होगा कि किसको अपॉइंट करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जाने कि बोर्ड आपका ऐसा है जिसमें अगर मान लीजिए अब कोई बोले कि चेयरमैन ऑफ IRDA भी गवर्नमेंट का साइकोफेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें 3 इकोनॉमिस्ट भी आ रहे हैं, 3 और लोग भी आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं। तो इतने सारे लोग सारे के सारे ऐसे नहीं हो सकते।
तो जब आप मेजॉरिटी देखोगे तो मेजॉरिटी में जिसका डिसीजन सामने आएगा, जिसके फेवर में बात होगी, उसका नाम जो है आगे चला जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स फॉर फुल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ स्टेट रन फाइनेंशियल एजेंसीज। तो ये चीज है, और इसने बीबीबी को रिप्लेस करा है। इट हैज रिप्लेस्ड बैंक बोर्ड्स ब्यूरो। दिस इज व्हाट हैज बीन डन एज अ पार्ट ऑफ एफएसआईबी। इज दिस क्लियर? यस। थर्ड न्यूज आर्टिकल, labor force. Labor force is a combination of employed plus unemployed people. You have to know the definition of who unemployed is. Unemployed is that person who is seeking work or who is looking for work. जो बंदा नौकरी ढूंढ रहा है, ढूंढने वाला कौन होता है? The person who's willing to work, who's looking for work, seeking work, but not able to find work. उसे नौकरी मिल नहीं रही, उसको कहा जाता है अनएम्प्लॉयड। प्लस एम्प्लॉयड तो खैर नौकरी कर ही रहा है, इसको लेबर फोर्स कहा जाता है। दिस इज लेबर फोर्स। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको आज की डेट में नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, एनएसओ। पहले दो संस्थाएं हुआ करती थी। देयर वर टू स्टैटिस्टिक्स एजेंसीज अंडर मॉस्पी। One was called NSSO, followed by CSO, National Sample Survey Office, and the second is Central Statistics Office. ये दोनों संस्थाओं का कॉम्बिनेशन जो है, उसके जरिए NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस बनाया गया है। So when we talk about National Statistics Office, NSO, this combination has been formed. और NSO अब वो सारा काम करता है जो पहले NSSO और CSO किया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। एनएसएसओ ने सन 2017 में एक स्पेसिफिक सर्वे चालू करा था, which was called the Periodic Labor Force Survey, PLFS। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बताता है कि कितने लोग या परसेंटेज ऑफ लोग हमारे देश में एम्प्लॉयड हैं, जिनके पास रोजगार है, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं यानी अनएम्प्लॉयड है। दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टेटेड अंडर PLFS और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इस परसेंटेज को डिक्टेट करता है या डिटरमिन करता है, स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। व्हेन वी से पीरियोडिक, पीरियोडिक मींस पीरियड, कितना पीरियड होगा? एक महीना भी होता है, एक क्वार्टर भी होता है, 6 महीना भी होता है, और एक साल भी होता है। तो जनरली इट गिव्स अ सर्वे ऑफ ईयर ऑन ईयर ऑफ व्हाट हैज बीन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को दो बेसिस पे या इनफैक्ट कई सारे बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया। रूरल एरिया में कितनी लेबर फोर्स है, उसमें से कितनी एम्प्लॉयड है, और जो जितनी एम्प्लॉयड है आने वाले सालों में या पिछले साल के कंपैरिजन में वो कितने परसेंटेज बढ़ी है। सेम अर्बन एरिया में कितनी लेबर फोर्स है, उसमें से कितनी अनएम्प्लॉयड है और कितनी एम्प्लॉयड है, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कितना बढ़ा या घटा, ये चीज बताई जाती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टेटेड। उसके बाद मेल फीमेल, इसके बेसिस पे भी बताया जाता है। दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच इज स्टेटेड। ये चीज भी बताई जाती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2000, तो जो लेबर फोर्स का सर्वे है उसमें क्या चीज बताई जा रही है कि 2022-23 के कंपैरिजन में 23-24 वाज बेटर, एंड एस्टिमेशन इज 24-25 विल बी फर्दर बेटर इन टर्म्स ऑफ बोथ लेबर फोर्स, रूरल अर्बन एंड मेल फीमेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज तक एक भी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है दैट हाउ मेनी जॉब्स वर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन, which was 2020-21. 2021 was a very difficult time for a country like India, which was heavily populated, and most of the workforce is engaged in the informal sector.
इनफॉर्मल सेक्टर वालों की नौकरी लगती है तो भी पता नहीं चलता है, नौकरी जाती है तब तो कैसे बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज है ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों की, बहुत फॉर्मल जॉब्स जिनको बोलते हैं, नौकरी चली जाती है तो पता तो चलता है, तो बट उस चीज का हमारे पास कोई भी आंकड़ा या डेटा नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा पर्सनली मानना है, दो चीजों के बारे में कोई सरकार दुनिया में कभी क्लेम नहीं करेगी। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा और दूसरा है पॉवर्टी डेटा। सच सच अगर किसी देश में मान लीजिए पॉवर्टी बढ़ती है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर निकल के ये बोलेगा कि हमारे देश में मेरे कार्यकाल में गरीबी बढ़ गई, जबकि सबको दिख रहा है कोविड में गरीबी बढ़ी होगी, कम तो हुई नहीं है। उल्टा हम ये और कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ गई। और दूसरी चीज है, कौन सा प्राइम मिनिस्टर या कौन सी गवर्नमेंट निकल के ये बोलेगी कि बेरोजगारी बढ़ गई है, कल इतने बेरोजगार थे आज इस साल इतने हो गए। हु विल स्टेट? नोबडी विल स्टेट, नो गवर्नमेंट विल डू दिस, which is why poverty ratio is looked at from the point of view of poverty estimates which are given by the World Bank, $2.15 per day। और इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स या एम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट्स जो है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO द्वारा दिया जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी कंट्री में हमारी जो एजेंसीज हैं वो हमेशा इस चीज की एक पॉजिटिव फिगर ही देंगी, और वो पॉजिटिव फिगर मे और मे नॉट बी इंटायरली ट्रू, कि आपका बेसिस क्या है जज करने का कि कौन कितना, कि कौन पॉवर्टी में है, कौन पॉवर्टी में नहीं है, कौन क्या इनकम कमा रहा है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आती हैं। तो उसको देखते हुए PLFS जो सर्वे किया गया है, ये सर्वे किया जाता है NSO द्वारा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज आपको तीनों रेट्स जो है वो बस आपको नॉर्मली फॉर्मूले पता होने चाहिए, कोई फिगर्स तो नहीं पूछेगा, आई डोंट थिंक फिगर्स विल बी आस्क्ड इन दिस। तो PLFS जो है वो NSSO द्वारा किया जाता है। इसमें न्यूज में जो था, मोर ऑन न्यूज के नीचे देखिए, अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड while the labor force participation rate rose, worker population ratio increased between Jan to March 23 from Jan to March 24, ये चीज करी जाती है। तो नीचे आप देख सकते हैं PLFS NSSO ने ऑर्गेनाइज करा था, लेकिन NSSO अब एग्जिस्ट नहीं करता है, अब NSO एग्जिस्ट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये जो चीज है ये स्टेट करती है कि हमारी कंट्री में किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट में गिरावट देखी गई है या इंक्रीज देखा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। तो दोनों चीजों को देखते हुए हम अगले पेज पे ये देखेंगे कि लेबर फोर्स का क्या परफॉर्मेंस है। ये ध्यान रखिएगा, जब लेबर फोर्स के बारे में बात होती है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयड एज वेल एज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कितनी जनसंख्या है और एम्प्लॉयड कितनी जनसंख्या है, ये बताती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशो ये बताता है कि जितने भी लोग हैं लेबर फोर्स में उतने उसमें से कितने वर्कर एम्प्लॉयड। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या है, तो देखिए की फाइंडिंग्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले देखो, जॉबलेसनेस और द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स विद द लेबर फोर्स, मार्केट इंपॉर्टेंट। नंबर अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, जितने अनएम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, यानी इसको अगर फॉर्मूले में लिखा जाए तो अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में क्या क्या आता है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। तो इसके बेसिस पे जो है हम क्या देखते हैं, व्हाट डू वी कैलकुलेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अनएम्प्लॉयड को हमने लेबर फोर्स से कैलकुलेट करा है। ओवरऑल unemployment rate in urban areas decreased to 6.7% during Jan to March 24 for persons aged 15 years and above। तो सरकार ये क्लेम कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है 6.7% से। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज टू 8.5% इन द सेम पीरियड फ्रॉम 9.2%। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होना अच्छा है या बुरा है, इज इट गुड और बैड? कम हुई है भाई चीज, बताओ। तो क्या होगा? हाँ जी, नहीं नहीं बताओगे? अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कम होना अच्छा या बुरा है? बुरा है ना, क्यों? अरे रुक जाओ भाई, बोलने तो दो उन्हें। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अरे ऑब्वियसली इट्स अ पॉजिटिव साइन if the unemployment rate decreases. The government is claiming that unemployment rate has decreased, which means employment has increased, right, across overall and female.
लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR. लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, यही फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखें, बेस्ड ऑन एवरेज ड्यूरिंग द वीक बिफोर द सर्वे डेट. अब इससे भी रिलेटेड आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये सब ना कॉन्सेप्ट्स हैं, आई वांट यू टू रिमेंबर एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट. तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के 3 मेजर्स होते हैं. पहला होता है यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच, जिसको यूजुअल स्टेटस अप्रोच भी कहा जाता है, यूएस अप्रोच. दूसरा होता है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, और तीसरा होता है करंट डेली स्टेटस अप्रोच. देयर आर 3 अप्रोचेस. तो यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच एंड करंट डेली स्टेटस अप्रोच. इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है आपको. यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच में आप एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड के क्राइटेरिया को देखते हो ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन बीइंग एम्प्लॉयड इन द लास्ट 365 डेज, 365 दिन. 365 दिन में से एक व्यक्ति कितने दिन एम्प्लॉयड था, मेजर पार्ट ऑफ द ईयर या माइनर पार्ट ऑफ द ईयर. मेजर माइनर का डिफरेंस हम यहाँ पे 6 महीने के बेसिस पे देखेंगे. If a person was employed for less than 6 months, then that person will be considered to be unemployed according to this approach. If the person was employed for more than 6 months, then a person will be considered to be employed according to this approach. तो यूपीएस अप्रोच का रेफरेंस पीरियड कितना है, 1 साल, 368. मतलब अगर मैं आज सर्वे कर रहा हूं तो मैं पिछले 1 साल में देखूंगा कि 1 साल में एक व्यक्ति कितने दिन एम्प्लॉयड था, more than 6 months or less than 6 months. Accordingly, that person will be called as employed or unemployed according to this approach. Second, weekly status. Weekly status का reference period obviously होता है 1 वीक, जिसके बेसिस पे ये सर्वे एक्चुअली किया जाता है. अब ये जो मेथड है मेरे हिसाब से सबसे आलसियों वाला मेथड. ये पता है क्या कहता है, current weekly status states that if a person has been employed for more than 1 hour, 1 घंटे से ज्यादा, in the entire previous week, then that person would be called as employed, else that person would be called as unemployed. मतलब कोई इंसान 1 घंटे काम कर रहा है, बताओ, तो उसको आप एम्प्लॉयड की कैटेगरी में डाल दोगे. कितना निहायती निकम्मा इंसान होगा वो, जो पूरे हफ्ते 1 ही घंटे काम कर रहा है. और अगर कोई 1 घंटे से कम काम कर रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा है. और हम लेबर फोर्स में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट किस बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, CWS अप्रोच पे कैलकुलेट कर रहे हैं. और CDS अप्रोच का भी रेफरेंस पीरियड 1 वीक ही है, लेकिन इसमें डेली का स्टेटस देखा जाता है, दैट हाउ लॉन्ग अ पर्सन हैज बीन एम्प्लॉयड. इफ अ पर्सन वाज एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 1 आवर ऑन ईच डे ऑफ द रेफरेंस वीक, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड. इफ द पर्सन वाज एम्प्लॉयड फॉर 1 to 4 hours, 1 से 4 घंटे के लिए, then that person would be considered to be partially employed, partly employed माना जाएगा. And if the person has been employed for around 4 to 8 hours, full day employed, complete employed person माना जाएगा. तो ये करंट डेली स्टेटस कहा जाता है. तो ये 3 अप्रोचेस होती हैं जिसके जरिए हम एक्टिविटी स्टेटस बोलते हैं इसे. ये एक्टिविटी स्टेटस में 3 अप्रोचेस के थ्रू हम एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड को कैलकुलेट करते हैं. तो आप देख सकते हैं LFPR इज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज अ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स. LFPR इन अर्बन एरियाज इंक्रीज्ड. LFPR मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ के 48 से 50% हो गया है, और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 22 से 25% हो गया है. दोनों ही इंक्रीज हुए हैं. अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जितनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, ध्यान रखें लेबर फोर्स में दोनों आते हैं, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड. तो अगर एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों आ रहे हैं और ये चीज बढ़ रही है, तो इसकी वजह से भी बढ़ सकती है. इट कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, ये भी याद रखिएगा. और तीसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशो, कितने लोग एम्प्लॉयड है, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड. तो WPR ऑफ पर्सन्स एजेड 15 एंड अबव इन अर्बन एरियाज इंक्रीज फ्रॉम 45% टू 46.9%. तो वर्कर पॉपुलेशन एरिया अर्बन एरियाज में इंक्रीज करा है और रूरल में भी इंक्रीज करा है. ये सरकारी आंकड़े हैं. तो गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इट हैज इंक्रीज्ड. सो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वी आर डूइंग वेल ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रंट. इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज द डिबेट हैज बीन ह्यूज व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट. People like Narayanan Murthy giving statements that you should work 70 hours a week, and the other people like L&T chairperson saying that you should work 90 to 100 hours a week. ये इतना 70 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे की जो डिबेट चल रही है in terms of work, this is glorification of toil culture और hard work और
a perverted hard work culture unnecessarily at the cost of those people who don't get anything out of that working of 70 to 80 hours, 80 to 90 hours. ये ऐसे में चल रहा है जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपका क्या फायदा होगा। भाई नारायणन मूर्ति अगर 100 घंटे काम करते हैं या 110 घंटे काम करते हैं, वो अपनी कंपनी को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे उनका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट होगा। So today if he is making 1 rupee, tomorrow that 1 rupee can become 100 rupee and day after tomorrow that can become 1,000 rupees. But for an employee or for a regular engineer who's working at 3 lakh rupees per annum, जो 3 लाख रुपए प्रति साल की नौकरी कर रहा है, इन्फोसिस में इतनी सैलरी है, 3, सवा 3, 3.5, 4 लाख रुपए की सैलरी है, इससे ऊपर तो सैलरी है नहीं। वो चाहे 70 घंटे काम करे, 80 घंटे काम करे या 90 घंटे काम करे, इन एवरी सिंगल केस उसकी सैलरी उतनी ही रहेगी, चाहे वो 70 घंटे काम करे, 50 करे या 90 करे। तो उसके पास क्या इंसेंटिव है इतनी हैवी नौकरी करने का? व्हाट इंसेंटिव डज दैट पर्सन हैव? ये चीज है, या तो उसको आप घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हो, यू आर, जैसे यूएस में होता है, यू पे अकॉर्डिंग टू आवर्स, तो आप 70 घंटे काम करिए, जो भी आपका आवरली रेट है फिक्स करिए, 1000 रुपए पर आवर आपका रेट है, तो आप 70 घंटे काम करेगा हफ्ते, आप उसे हफ्ते के 70,000 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। महीने के 2.5-3 लाख रुपए जो भी बनते हैं आप वो दे दीजिए। सो इफ दैट इज द इंसेंटिव देन दैट शुड बी डन। But problem is that you want that person to work 70, 80, 90, 100 hours at the same salary. So this is not something which is supposed to be glorified. तो जब हम पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, इंडिया में सैलरीज आर लेस, बट एट द सेम टाइम द वर्क प्रेशर शुड ऑल्सो बी लेस, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग द वर्कलोड अमिट्स पीपल। एक काम के लिए अगर आप 3 लोग हायर करते हो तो एक आदमी की सैलरी आप 3 लोगों को दे रहे हो, और अगर एक इंसान की सैलरी 3 लोगों को दे रहे हो तो उससे एम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन सबका जो सैलरी का ब्रैकेट है वो कम हो रहा है। एवरीवन इज अर्निंग लेसर सैलरीज, which is why we say that inflation impacts the poor more as compared to the rich. Rich पे तो बहुत कम फर्क पड़ेगा, rich पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन poor पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। This is something that we need to realize with respect to this. All right. Next is India Skills. National Skill Development Corporation का नाम सुना है आपने? NSDC. स्किल को लेके पहली संस्था बनाई गई थी 2008 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट इवन हैज अ कॉलेज, इट्स हियर इन साउथ दिल्ली, वसंत कुंज में इसका एक कॉलेज भी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। एंड इट गिव्स अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन वेयर इफ यू आर स्किल्ड, स्किलिंग इज कॉल्ड एज वोकेशनल एजुकेशन, तो आपको उसकी डिग्री मिलती है और उसके बेसिस पे आपको नौकरी भी मिलती है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। Since this government has come into power, 2014, it has started to work incessantly on skill development via vocational education and the Skill India mission that came about in 2014. Employability is not on the basis of qualification. ये चीज याद रखिएगा। पहले जमाने में होता था, मिडिल क्लास में एक ही चीज बोली जाती थी कि सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कर लो, आपकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, जो कि सच भी था। When I was in school at that time, this was the common dialogue. The entire focus of middle class parents is on kids education. आपके घरों में भी ऐसा ही होगा, मैं जूम कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन यूजलेस है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन के साथ आपको कुछ आना भी चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट टुडे इन एवरी सिंगल फील्ड वी जस्ट हैव knowledge, bookish knowledge, but we don't have practical experience. Which is why we are not desired by any of the employers, because employers today they need those people जिसको पहले से चीजें आती हो। मैं किसी को सिखाने पे मेहनत नहीं करना चाहता। I can pay a little extra money to that person who knows the job. अब जिसको काम आता होगा वो फ्रेश ग्रेजुएट तो हो नहीं सकता, या वो फ्रेश डिग्री होल्डर तो हो नहीं सकता, वो कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा। तो इस वजह से दूसरी जगहों से पोचिंग शुरू हो गई है, यहाँ से पोच करके ले आओ, यहाँ से तोड़ के ले आओ, यहाँ से उठा के ले आओ। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and important now more than ever that we have a proper skill development mission, कि हमारा एक proper skill development mission हो, जिसकी वजह से India Skills 2024 has come into play, which basically is focusing on skilling, and that too skilling females in those jobs which are defined for males. मतलब मेल्स के लिए जो चीजें डिफाइंड हैं, उन चीजों के लिए आप फीमेल्स को स्किल कर रहे हो amidst a certain sector or amidst a certain population, so that they get the skill also and they become employable also and they get good remuneration also. तो इससे कई सारी चीजें सॉल्व हो रही है।
पहली चीज ये सॉल्व हो रही है कि स्किल बढ़ रहा है, स्किल की वजह से दूसरी चीज सॉल्व हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और तीसरी चीज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। तो एक तीर से तीन निशाने साधे जा रहे हैं अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो इंडिया स्किल्स आप देखिए, मोर देन 170 वुमेन पार्टिसिपेट इन ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स एट इंडिया स्किल्स। ये मेल डोमिनेटेड ट्रेड्स क्या क्या है, नीचे बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए। लॉजिस्टिक्स एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग, वेब टेक्नोलॉजीज, विजुअल मर्केंडाइजिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी। तो उसमें 900 से ऊपर कैंडिडेट्स चूज करे गए थे, और ये बहुत हेविली कंपेटिटिव स्पेस है, ये चीज है, और इसमें इन लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तो नीचे इंडिया स्किल्स है, hosted by National Skill Development Corporation under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Objective क्या है? To demonstrate highest standards of skilling and provide a platform for youth to showcase their talent at national and international level. ये चीज करी जा रही है। So this is about the Skill Corporation, skill development. Next page पे आइए। देखिए जी, ये अलग अलग नाम, हाँ जी बताओ। So organized and unorganized, we normally categorize our labor force. labor force को categorize करा जाता है इस टर्मिनोलॉजी पे, आपने शायद ये चीज तो सुनी होगी। ये इनफॉर्मल जॉब है, ये फॉर्मल जॉब है। जो कंपनीज है उनको कैटेगराइज करा जाता है इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कंपनीज को कभी फॉर्मल इनफॉर्मल नहीं बोला जाता, लेबर को फॉर्मल इनफॉर्मल बोला जाता है। कॉर्पोरेट्स या कंपनीज को ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड कहा जाता है। इस बार इस सर्वे में एक नई टर्म आई है जिसको इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड कहा जाता है। मतलब सेम है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ मतलब आउट ऑफ द ब्लू पढ़ रहे हैं या कोई नई चीज आ गई है। इट इज द सेम मीनिंग where we are studying about unincorporated entities, that how many entities are such which are unincorporated। इसका सर्वे करा जाए, इनको गिना जाए, और इसके बेसिस पे ये देखा जाए कि इन एंटिटीज का कंट्रीब्यूशन क्या है, और इन एंटिटीज के फंक्शन करने से या ना करने से इंडियन इकोनॉमी को कितना फर्क पड़ता है। हाउ मच इज द इंडियन इकोनॉमी इंपैक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और लेट्स से दी अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, जो नाम यहां दिया है उसी को लेके चलते हैं। ये चीज याद रखिएगा कि भारत जिस तरीके की अर्थव्यवस्था है, अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद, कोविड के बाद, तो फिर फॉर्मलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। उसके पहले तो बहुत कम हुआ करता था। उसके पहले रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हिंदुस्तान में 4 करोड़ हुआ करते थे, 3.5-4 करोड़ रजिस्टर्ड लोग, जो टोटल लोग आईटीआर फाइल करने वाले 3.5-4 करोड़। डीमोनेटाइजेशन हुआ, फिर कोविड आया, उस दौरान फॉर्मलाइजेशन बढ़ा, तो अब जाके जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं वो तकरीबन 7 से 8 करोड़ के बीच है। 7 to 8 CR, 80 मिलियन यू कैन से दे फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो अब सोच के देखो, 140 करोड़ की जनसंख्या में 8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, और हम इतना प्राउड फीलिंग हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। परसेंटेज वाइज करोगे तो 4-5% भी नहीं होते, और उसमें से भी एक्चुअल टैक्स भरने वाले 1.5 करोड़ लोग हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, लेस देन अराउंड 1% हुआ, इज ओनली 1%। सो दैट इज इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इसका क्या, अगर 8 करोड़ लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है 8 करोड़ लोग ही इनकम कमा रहे हैं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? इन अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल, let's exclude 40% population which is either aged, retired और young studying। उसमें 40% population हटा दो, मैं कह रहा हूं 50% हटा दो, 70 करोड़ लोग बचे, 70 CR। 70 CR लोग कुछ तो कर ही रहे होंगे। उसमें से अनएम्प्लॉयड मान लो 10-20 करोड़ हटा दो, तो 50 करोड़ लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे।
Out of 50 crore people who are functioning in the organized sector, 8 crore people are filing ITR. The rest 42 crore people are actually working as a part of what? Unorganized sector, which is the exact data that comes from the International Labour Organization, actually, that India has an unorganized workforce of 400 million people. 400 million का मतलब हो गया 40 करोड़ लोग. यूएस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा. यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़ की है और हमारे यहाँ 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करने वाले लोग. तो इस वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत रैम्पेंट है इंडिया में. जो कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर करता है, इसकी वजह से भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन बहुत मैसिवली इंपैक्ट होता है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड क्यों रखा हुआ है उसने टैक्स एवेजन के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर रखा हुआ है, पहली चीज. दूसरी चीज, उसके ऊपर अननेसेसरी लिटिगेशन से मेरा मतलब है लॉज अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, कि लेबर लॉज अट्रैक्ट हो जाएं, फिर उसको कंप्लायंसेस करने पड़े. ये सब चीजें उसको नहीं करनी पड़ती. उसको बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ता. उसको लेबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं ध्यान रखना है, उसको ये सब कुछ काम नहीं करना है, विच इज वाई इट इज फोकसिंग और फंक्शनिंग इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फैशन, सॉरी इन अ वेरी कैजुअल फैशन. एक कैजुअल फैशन में वो चीज चल रही है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, या अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है. अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर आज भी सबसे बड़ा सेक्टर है. इस सेक्टर को भारत सरकार कभी नहीं छेड़ेगी, या लेट्स से इस सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश ही नहीं करेगी. ऑर्गेनाइज करना ना करना तो दूर की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट इवन ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट. टेल मी व्हाई. अगर कोई चीज गलत हो रही है तो ठीक करने की कोशिश करोगे ना, लेकिन यहां पे सरकार कोशिश करेगी भी नहीं. इट विल नॉट इवन ट्राई. व्हाई? वोट बैंक. अच्छा, ओके, और सोचो. ओके, ओके, एनीवन एल्स? क्राइसिस. अच्छा, ओके. अरे रेड मार देगी गवर्नमेंट? अरे रेड क्यों मार देगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को पता है वो अनऑर्गेनाइज्ड है. यस, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये एम्प्लॉयड ही इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है. जिस दिन आपने बहुत ज्यादा पोक करा इन्हें, तो क्या होगा? एम्प्लॉयर वो हाथ जोड़ लेगा कि ऐसा है सरकार, आप जाओ, हमें नहीं रखने लोग, ले जाओ इन्हें. तो इट विल क्रिएट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं. आप यहां से जाइए मार्केट में, आप घूमिए, ठीक है, आप देखेंगे कि एक एक ग्रोसरी स्टोर है, किराने की दुकान है. उसकी दुकान में आसपास 10 लड़के घूम रहे होंगे, ठीक है, कि पीछे स्टोर से जाके निकाल के ले आओ, ऊपर से उतार दो, माल आया अनलोड करा लो, ये अंदर रखो, ये बाहर रखो, ये एक्सपायर हो गया, ये हो गया, ये वो हो गया, दुकान देख ले, मैं बाहर जाके आता हूँ, बैंक जाना है, ये. तो 100 काम होते हैं दुकान में. ही इज एम्प्लॉयड प्रोबेबली 8, 10, 12 पीपल. और एक बड़े साइज की दुकान होगी, वो 20 से ऊपर लोग रखता है. अब पॉइंट है, अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाए, मतलब पूरा सिस्टम डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल करे, रिटर्न्स फाइल करे, तो लेबर लॉ हमारा ये कहता है कि अगर आपके पास 10 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर लेबर लॉ अट्रैक्ट होगा. लेबर लॉ अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब ये है कि आप जो सैलरी पे करोगे उसके ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. आपको उन एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करके काट के डिपॉजिट कराना पड़ेगा. इतना तामझाम अगर एम्प्लॉयर को करना पड़े तो एम्प्लॉयर कभी रखेगा ही नहीं उतने लोग. आप समझ रहे हैं? एक तो पहली बात, लोगों को खुद टीडीएस कटवाना मंजूर नहीं है. भाई मेरा बजट है सैलरी देने का 15,000 रुपए, टीडीएस काटूंगा तो तुम्हें 14,000 रुपए मिलेगी, सीधी बात है.
अब 14,000 उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जिस लेबर का कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उनके लिए 1-1 रुपए मैटर करता है। 1,000 रुपए आप काट लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, इट विल बी अ वेरी बिग थिंग। तो वो आप काट नहीं सकते हो, यू कैनॉट डिडक्ट दैट। तो इस वजह से व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि you don't want to organize the sector because organization of the sector would create rampant unemployment। और वो अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट हो गई तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बस की है उनको एम्प्लॉयमेंट देना? मतलब ही नहीं बनता, इट इज नॉट पॉसिबल। जितने नए लोग आ रहे हैं उतने लोगों को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रही है, नए लोगों को, पुराने लोगों को कहां से दे देगी? तो जो चल रहा है सिस्टम उसको चलने दो। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन क्या है? हाँ जी, कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, हाँ जी, it is contributing towards economic growth, it is contributing towards GDP of the country directly as well as indirectly। डायरेक्टली तो उतना नहीं कर रहा है क्योंकि ये ब्लैक मनी जनरेट होता है मोस्टली, लेकिन ब्लैक मनी का भी जनरेशन जीएसटी में या कंजम्पशन में कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करता ही है। अगर किसी ने ब्लैक मनी कमाया, मान लो किसी ने 15-20 हजार रुपए का ब्लैक मनी कमाया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करोड़ ऑफ ब्लैक मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनेबल ब्लैक मनी जो तनख्वाह के रूप में कोई कमाता है, उस रूप में नहीं जिस रूप में हाई कोर्ट के जजेस आजकल कमाने लगे हैं। कितना ब्लैक मनी मिला उनके घर से? कोई कोई फिगर आई है? पता नहीं चल पा रहा है। 15 करोड़, पूरा कमरा भर के कैश था। कमाल है। इस ब्लैक मनी की बात नहीं हो रही है, ये कंजम्पशन वाला ब्लैक मनी है ही नहीं। वो 15 करोड़ से कपड़े थोड़ी खरीदेगा, कपड़े खाना थोड़ी खरीदेगा। वो 15 करोड़ ब्लैक मनी का कर क्या रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। नॉर्मली ये ब्लैक मनी जो है जितना है रियल एस्टेट में पार्क होता है। आई एम सरप्राइज्ड व्हाट दैट पर्सन वाज डूइंग। और ये तो बताओ हाई कोर्ट का जज है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, उसके ऊपर सीजेआई होता है। देयर आर सो मेनी पीपल ओवर एंड अबव दैट पोस्ट। So the black money which has been generated, it would contribute towards economic growth, hidden economic growth that is due to happen। वो होगी चीज, लेकिन वो इनडायरेक्टली होगी। डायरेक्टली कम होगी, इनडायरेक्टली ज्यादा होगी। इनडायरेक्टली इसलिए होगी बिकॉज ऑल्दो वी कैनॉट काउंट इट इन आवर नेशनल इनकम इन जीडीपी बिकॉज इट इज ब्लैक मनी, बट स्टिल इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रोथ, हिडन ग्रोथ। तो वो हिडन ग्रोथ भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे ही रही है। अगर ऑफिशियली या नंबर्स में नहीं दे रही है, कम से कम एम्प्लॉयमेंट में दे रही है, इकोनॉमी में दे रही है, जो सामान बिकता है उसमें दे रही है। इट इज गिविंग इन ऑल दीज बेसिस। तो यही चीज यहाँ पे दी जाती है और इसी के बेसिस पे यहाँ पर कैटेगराइज करा जाता है एज अ पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक यूज। तो इधर एक एनुअल सर्वे है ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस की कितनी एंटरप्राइजेस हैं ऐसी जो कि अनइनकॉर्पोरेटेड है। इसमें मेजॉरिटी जो एंटरप्राइजेस हैं वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, एमएसएमई जिसे बोला जाता है। मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, रिलीज्ड की रिजल्ट्स ऑफ एएसयूएसई, ये चीज करी जा रही है। तो इस चीज को देखते हुए आप यहाँ पे देखें एएसयूएसई किस बेसिस पे ऑपरेट करती है फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द विलेजेस ऑफ अंडमान। अंडमान का विलेज अगर छोड़ दिया जाए, सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, नॉन एग्रीकल्चरल एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड अदर सर्विसेज। तो हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। ओनरशिप वाइज जो है वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पार्टनरशिप है, एसएचजी है, कोऑपरेटिव है, ये सब लोग हैं। तो नीचे देखिए ग्रोथ ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी जो ग्रोथ देखी जा रही है, द नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स इन द सेक्टर ग्रू फ्रॉम 5.97 करोड़ टू 6.5 करोड़। मार्केट इंपॉर्टेंट, 5.88% इंक्रीज, 5.88% इंक्रीज हुआ है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में। और एस्टैब्लिशमेंट्स एंड अदर सर्विसेज सेक्टर ग्रू एनुअली बाय 15%। ये सर्विस सेक्टर की बात करी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स इंक्रीज बाय 2.22%।
तो इतनी अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज ग्रो करी, मेजॉरिटी एंटिटीज जो है वो एमएसएमई सेक्टर की एंटिटीज है। और इसी के साथ जो लेबरर्स हैं, नंबर ऑफ लेबरर्स देखिए, अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर एम्प्लॉयड 11 करोड़ वर्कर्स इन 2022-23 अप फ्रॉम 9.8 करोड़, ये भी बढ़ गया है। तो इनफॉर्मल जॉब्स भी बढ़ गई हैं, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज भी बढ़ गई हैं। और ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा बता रहा है। दिस बेसिकली मीन्स दैट पीपल वांट टू वर्क इन इंडिया, people want to manufacture in India, people want to do business in India, but they want to do everything in what form? Unorganized form, unincorporated form, क्योंकि उसमें आपको लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं फॉलो करनी पड़ती हैं, फॉर्म्स नहीं भरने पड़ते हैं, लीगैलिटी से बच जाते हो, पेपर वर्क से बच जाते हो। ये बेसिक सेक्टर है, ये बेसिक फैक्टर है। तो आप देख सकते हैं नीचे दे रखा है अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। It is an integral part of the Indian economy. It not only comprises a large number of establishments but generates a large number of employment. It significantly contributes towards GDP. लेकिन ये चीज ऑफिशियली पता इसलिए नहीं चलती है जीडीपी कंट्रीब्यूशन, रीजन बीइंग कि वो ब्लैक मनी के बेसिस पे होता है। बहुत कम ऐसा होता है जो व्हाइट मनी होता है। जैसे जैसे उन्होंने बोला कि जो कमा रहा है वो इवेंचुअली कोई ना कोई आइटम खरीदेगा, हर आइटम में जीएसटी होता है, तो जीएसटी के थ्रू कंट्रीब्यूशन तो आपको दिख जाएगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन दिखेगा, उसकी इनकम का कंट्रीब्यूशन नहीं दिखेगा। और इसी वजह से, क्योंकि अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंडिया में एक्ट करता है, कल को भारत में अगर रिसेशन आएगा या भारत का स्टॉक मार्केट अगर क्रैश भी करेगा तो कभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फर्क नहीं दिखेगा। इट विल नेवर बी विजिबल। क्यों फर्क नहीं दिखेगा? क्योंकि उनके ऊपर स्टॉक मार्केट ट्रेड इंपैक्ट नहीं करता है। 2008 में यही चीज हुई थी। 2008 was a year of global financial crisis which actually impacted India. बट भारत के लोगों पे जो इम्पैक्ट हुआ, Indians were impacted, they were impacted hugely. तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो भारतीयों पे हुआ वो हार्डली 1% लोगों पे हुआ। 1% भी ज्यादा है, 0.1% लोगों पे इम्पैक्ट हुआ। 0.1% लोगों पे इम्पैक्ट जो देखा गया, उसकी वजह से यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट the other people are not bothered about 0.1% people. स्टॉक मार्केट अगर क्रैश कर रहा है, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं? हार्डली एनी। अब तो खैर बहुत बढ़ गया है स्टॉक मार्केट, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही कम था, क्योंकि उस टाइम पे मेजॉरिटी लोग जो है वो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर में थे। अभी भी है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे। आज भी अगर स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मेजॉरिटी लोग इम्पैक्ट होंगे वो शायद 3, 4, 5 करोड़ लोग होंगे। 5 करोड़ लोग इज नॉट इवन 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अगर इम्पैक्ट हो रही है तो उसकी वजह से आप 97% को थोड़ी छोड़ दोगे। 97% का इम्पैक्ट जो है वो 3% लोगों को फायदा थोड़ी पहुंचाओगे। दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा देखती नहीं। इट डजंट सी। और ये किसी, आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप रोज के हिसाब से इतने अनाउंसमेंट्स कर देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। तो उनकी वजह, उस अनाउंसमेंट की वजह से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट तो इम्पैक्ट होते ही है, उनकी अपनी कंट्री का भी स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या सैन फ्रांसिस्को स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़ रहा है, वो भी गिर रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। इट डज नॉट कंसर्न देम, क्योंकि मेजॉरिटी जनता कौन है? मेजॉरिटी जनता जो वोटर बेस है वो है ही नहीं जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग कर रहा है। वो कौन है? वो सरकार के वेलफेयर इनिशिएटिव्स का फायदा उठाने वाला इंसान। आप समझ रहे हैं? इस वजह से अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर को चलने दो, जितना चल सके चलने दो, डोंट टच दैट सेक्टर, ये चीज कही जाती है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारी चीजें प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, but analysis is important for mains as well. We are not doing mains right now, but you should remember these for mains as well. Next पेज पे NAC दिया हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोड। अगर एग्रीकल्चरल कोड बनाया जाए कि एग्रीकल्चर ऐसे 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 होना चाहिए, तो आपको लगता है फार्मर्स फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? नेशनल बिल्डिंग कोड, NBC, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड, तो बिल्डिंग बनाने वाले फॉलो करते हैं कि बिल्डिंग ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, अब आज की डेट में आप देखिए, यहाँ पे राजेंद्र नगर में इतना बड़ा हादसा हुआ 1 साल पहले, उसके बाद से लेके अभी तक, और मुखर्जी नगर में उसके पहले जो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल था उसके चलते कितनी सारी बिल्डिंग्स को सील करा गया कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वर नॉट अबाइडेड बाय, दे वर नॉट फॉलोड। तो क्योंकि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, अबाइड बाय नहीं हो रहे हैं, चीजें जो है वो प्रॉब्लमेटिक बेसिस पे चल रही है, तो सारी की सारी बिल्डिंग सील कर दी गई। अब ये अलग बात है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, लेकिन
जब भी हुआ, पॉइंट है कि आपका एक कोड था, उसके अकॉर्डिंग आपने सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करा, यू फॉलोड अ सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड अकॉर्डिंगली यू टुक एन एक्शन। और ये चीज यहाँ भी करी गई है। राजेंद्र नगर में कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को सील कर दिया गया है, जहाँ पे एनओसीज नहीं है, जहाँ पे फायर एग्जिट्स नहीं है। तो दैट इज नेशनल बिल्डिंग कोड। अब वैसे ही जैसे बिल्डिंग कोड है, वैसे ही एक नेशनल एग्रीकल्चर कोड आए कि एक स्टैंडर्ड बताए कि एग्रीकल्चर ऐसे होना चाहिए। मुझे तो ये पढ़ के थोड़ी सी हंसी आई। मैंने ये सोचा कि आप कोड बना के लिख दो, आपको क्या लगता है फार्मर फॉलो कर लेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? बहुत सारे एनोमलीज, क्या एनोमलीज है? अरे तुम इतना बोल रहे हो, तुम पहले ये तो देखो कि नेशनल एग्रीकल्चर कोड में अगर बेसिक बेसिक चीजें गवर्नमेंट बताए तो वो फार्मर फॉलो नहीं करेगा? नहीं, ये भी नहीं करेगा। हाँ, यस, this makes sense. Farmer training is important. This is something that the point of I was looking for even when I was reading. So I thought that आप एग्रीकल्चर को, अब वही बात है ना, ऑन पेपर कोई चीज होना और प्रैक्टिकली कोई चीज, जमीन आसमान का फर्क है। ऑन पेपर तो चीज परफेक्ट ही बनती है, उसमें तो खराब होने के चांसेस बहुत कम है। इट इज नॉट दैट यू कैन गो रॉन्ग ऑन पेपर, बट द पॉइंट इज दैट हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू अप्लाई इट प्रैक्टिकली। So you are planning to make a code for agricultural, if it is an agriculture code, it has to be practiced by whom? By the farmers. I don't have to practice it, farmers have to practice it. Only then you will be able to say कि ये code follow हो रहा है, तो produce की जो quality होगी वो अच्छी होगी, वो बुरी नहीं हो सकती। It is a proper process which is happening via this. तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है वो प्रपोज किया गया है अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्टैंडर्ड्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और ये कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचाने के बारे में सोच रही है? क्योंकि ये काम अगर यूएस में हो तो ये आसान काम है, क्योंकि यूएस में 2% जनसंख्या, 2% ऑफ द पॉपुलेशन प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर। इंडिया में ये चीज मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन 4 गुना है और दूसरी बात उस 4 गुना पॉपुलेशन में से 45% जनसंख्या खेती बाड़ी कर रही है, एग्रीकल्चर कैसे ट्रेन करोगे आप? हाउ विल यू ट्रेन देम? सो द बीआईएस, ये बीआईएस जानते हैं आप क्या होता है? बीआईएस क्या होती है? मानक क्या होता है? स्टैंडर्ड। नहीं वो तो ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल, लेकिन करता क्या है? स्टैंडर्ड कैसे तय करता है? यस, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाता है। इसके मार्क्स होते हैं, आपने देखा होगा 9001 इस टू 2001 2002 ऐसे करके इसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स में दिए होते हैं। तो आप जिस कोड में क्वालिफाई करते हो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो दो स्टैंडर्ड्स व्हिच आर स्पेसिफाइड इन दैट कोड। तो ये ब्यूरो करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एनएसी। तो इन्होंने जैसे एनबीसी बिल्डिंग कोड इलेक्ट्रिकल कोड करा है, वैसे ही ये चीज करती है, इसका एनएसी होगा। तो आप नीचे देखिए, बीआईएस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स हैज एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर एग्रीकल्चरल मशीनरी। मशीनरी कैसी होनी चाहिए? ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इनपुट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कैसे होने चाहिए। However, many aspects of agriculture such as field preparation, water use still lack standardized practices. इसमें आज भी नहीं है। As a result, policymakers have recognized the need for a comprehensive framework which the NSE aims to provide, जो NSE provide करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली यही दोनों चीजें प्रॉब्लम है कि आप कितना फर्टिलाइजर डालते हो और आप कितना पानी यूज करते हो। ये तो आपने सुना होगा, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अब पानी फ्री है तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है, इससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। डेजर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल फार्मलैंड हो रहा है, वो कैसे रोका जाए? बाय जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। अब ये फार्मर को समझाए कौन? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मर्स फर्टिलाइजर सस्ता होने के कारण
डबल फर्टिलाइजर डाल देते हैं ये सोच के कि हमारा कुछ फायदा हो रहा है। आप उससे 4 गुना नुकसान करते हो। फर्स्टली आपके क्रॉप की क्वालिटी उतनी हेल्दी नहीं है जो आगे के लोग कंज्यूम करेंगे, ठीक है। दूसरा, आप अपने सॉइल की क्वालिटी और बर्बाद कर रहे हो। और तीसरा, जो सॉइल के पर्कुलेशन होंगे उससे ग्राउंड वाटर जो है और कंटामिनेट हो जाएगा। तो आप इतना डैमेज कर रहे हैं बाय एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड और व्हाटएवर। सो हाउ टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस? तो एनएस, अब ये पता तो सबको है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं नई बात कर रहा हूं आज की डेट में या गवर्नमेंट नई बात कर रही है। 10 साल पहले भी ये प्रॉब्लम थी, अब ये प्रॉब्लम बढ़ गई। तो यह प्रॉब्लम ज्यादा मेन स्ट्रीम में आ गई है, ज्यादा लोगों को पता है इस बारे में। तो क्या एनएसी कोड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्वेश्चन इज दिस, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सिर्फ और सिर्फ एक कोड बनाने से? तो नीचे देखिए, एनएसी जो स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है, एनएसी विल कवर द एंटायर एग्रीकल्चरल साइकिल एंड इंक्लूड गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स। Two parts, it will be divided into 2 parts: general principles applicable to all crops and crop specific standards for major crops like wheat, paddy, pulses and oilseeds. Reference: this code will serve as a reference for farmers, agricultural universities and field officials. तो स्कोप क्या है कि एग्रीकल्चरल मशीनरी पे भी अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, क्रॉप सिलेक्शन, लैंड प्रिपरेशन, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, इरिगेशन, ड्रेनेज, सॉइल एंड प्लांट हेल्थ, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग, ये सारे प्रोसेसेस पे अप्लाई हो रहा है। नाउ द एंटायर पॉइंट इज दैट हाउ डू यू अप्लाई। लास्ट पॉइंट देखिए, टाइमलाइन। BIS has already formed working groups for 12 to 14 areas to draft the code, which is expected to be completed by October 2025. Afterward, training programs for farmers on NAC standards will be organized in collaboration with agricultural universities. ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इससे थोड़ी बहुत आप हेल्प ले सकते हो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। लेकिन ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव होंगे उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने कामयाब होंगे इस चीज में। इट डिपेंड्स ऑन दैट। BIS से एसोसिएटेड एक न्यूज आर्टिकल और है, पेज नंबर 30 पे आइए। आप सब लोग एप्स तो यूज करते होंगे, ई कॉमर्स एप्स, एम कॉमर्स एप्स, क्विक कॉमर्स एप्स यूज करते हो? क्या ऑर्डर करते हो? ग्रोसरी, क्लोथ्स ऑर्डर करते हो? और कुछ भी? क्या कुछ भी? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ऑर्डर करते हो? फोन से नहीं, फोन वहीं से ऑर्डर करते हो? तुमने फोन वहां से ऑर्डर करा? कौन सा? मोटोरोला? आज भी मोटोरोला बिकता है? तो कुछ रेटिंग्स वगैरह देखते हो? बिना रेटिंग्स देखे ऑर्डर कर देते हो? नहीं, चलो भाई वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वो रेटिंग्स देखते हैं, फीडबैक रेटिंग्स, ये क्या बोलते हैं, रिव्यूज, वो देखते हैं। तो अब आप सोच के देखो कि आपने रेटिंग देखी और उसके बेसिस पे आपने ऑर्डर करा। अब आपको कैसा लगेगा ये देख के कि जो रेटिंग्स है वो रेटिंग्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है? जो कि अभी तक हो रहा था जोमैटो, स्विगी पे। जोमैटो पे रेस्टोरेंट देखते हो क्या रेटिंग है? 4.3, 4.2, सब वाहियात खाना खिलाते हैं। ऐसा हुआ है 4.3 रेटिंग वाले रेस्टोरेंट से आपने घटिया खाना खाया हो? होता है? कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं? या आप लोग यही रहते होंगे ना राजेंद्र नगर में? कौन से ऐसे रेस्टोरेंट है जो 4.3, 4.2 वाले हैं लेकिन खाना बिल्कुल घटिया भेजते हैं? कौन है? डाइस? ये कौन है? पता नहीं मुझे क्या है। क्या ये चाइनीज फूड भेजता है क्या? अच्छा, रेटिंग बहुत ज्यादा है, खाना अच्छा नहीं है। ऐसे और भी होंगे। और आपने अलग अलग पार्ट, मतलब आप सब लोग अगर अपने होम टाउन्स में भी ऑर्डर करोगे यही प्रॉब्लम आएगी, आप यहाँ पे ऑर्डर करोगे यही प्रॉब्लम आएगी। तो इवेंचुअली वी आर बीइंग मिसगाइडेड बाय दोज रेटिंग्स एंड बाय, पता नहीं उस पर कस्टमर रिव्यू भी आ जाता है। आप समझ रहे हैं? तो अब आप वो रेटिंग्स देख के ऑर्डर करते हो। अब कंज्यूमर भरोसा करे तो किस चीज पे करे? फिर रेटिंग्स पे ही भरोसा करेगा ना।
हर चीज पे रेटिंग्स आती है, गूगल रेटिंग्स आती है, या आपकी जो एप्स होती है जोमेटो स्विगी की रेटिंग्स आती है, और उसी तरीके से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, इन सब पे जो है रेटिंग्स आती है, प्रोडक्ट रेटिंग्स होती है। आउट ऑफ 5, 3.9, 4, 4.1, 4.3, उसके ऊपर रिव्यूज होते हैं, तो खूब सारे रिव्यूज होते हैं। अब ये जो रिव्यूज है ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करे जाते हैं, या रेटिंग्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करा जाता है, आर्टिफिशियली रेटिंग्स दी जाती है। मतलब इस पे पूरी की पूरी एजेंसीज बैठी है, अगर आपको पता हो। हजारों लोग अपने, या हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर सिटिंग विद 10 मोबाइल फोन्स ईच, और वो बैठ के रेटिंग्स देते रहते हैं पूरा दिन, उनका यही काम है, और उसके पैसे लेते हैं। एक लाइक के 1 रुपए, एक लाइक के 50 पैसे, एक लाइक के 40 पैसे। आपको 1 लाख लाइक्स चाहिए तो वो 50,000 रुपए ले लेंगे। तो अब 1 लाख लाइक्स आपको मिले और 1 लाख लोगों ने 4.5 रेटिंग दी, तो आपकी एवरेज रेटिंग तो बढ़ी जाएगी। और जब एवरेज रेटिंग बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सर्चेस में बेटर होगी वो चीज और वो ज्यादा बिकेगी। अब पॉइंट है, इट इज आपका प्रोडक्ट अगर सही नहीं है, सो इट इज लीडिंग टू मिसलीडिंग द कंज्यूमर, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी स्टॉप्ड। तो इंडिया में BIS, अगेन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ला रहा है फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एटसेट्रा। प्लीज वेट।